Good morning once again. In a NEET foundation course, we are studying biology. This is the fourth session of the foundation course of biology. We are here taking the diversity of the living world. Under that, in our previous sessions, we discuss about the how the life come on the earth, exist on the earth. Along with that, we studied that how we are going to differentiate between the living and non-living entities. What are those important characteristic features through which we are going to differentiate the living as well as non-living things. Now, how much diversity or the diversity is present on the earth? How we are going to recognize? How many living organisms are living on this planet earth? Whether it will be microorganism, whether it will be plant or animal, etc. So it is a very difficult task. So the system of organizing, arranging and giving a clear cut picture about this diversity of living organism is going to study under a one particular topic, that is called classification. As you know that it is very important to arrange the things, organisms and even a normal things for better using the things. तो यहाँ पर we have an estimated numbers of the organisms, that is according to taxonomy. What is this taxonomy? We are going to discuss. The taxonomist giving an estimated number of living organism is around 1.7 to 1.8 million species. So this we have a numbers 1.7 to 1.8 million species presently identified and classified in this planet Earth. हमारे इस अर्थ में अब तक जितनी हमें जानकारी है, तो जानकारी के हिसाब से जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं, the persons who study taxonomy is called taxonomist. Taxonomy is a branch of biology dealing with the classification of living organism. So taxonomy क्या है? Taxonomy एक ब्रांच है जो किसके बारे में डिस्कस करती है? क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करती है। तो उसी के अकॉर्डिंगली जो साइंटिस्ट हैं वो एक नंबर प्रोवाइड करेंगे आपको, और वो नंबर है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज। अब ये 1.7 मिलियन या फिर 1.8 मिलियन ये जो है ये नंबर्स की बात नहीं हो रही, यानी कि ये बात नहीं हो रही कि फॉर एग्जांपल अगर आज दुनिया में 7.2 बिलियन ह्यूमन पॉपुलेशन है, तो ये 7.2 बिलियन पॉपुलेशन है ना, एनॉर्मस नंबर है। 7.2 बिलियन जो नंबर है ये सारे एक स्पीसीज काउंट होते हैं। आर यू गेटिंग माई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यानी कि ये 7.2 ह्यूज नंबर है, ये नंबर यहाँ पर क्या बनेगा? एक बनेगा। तो सारे दुनिया के बसने वाले इंसान, चाहे वो नॉर्थ पोल में रहता हो, चाहे वो साउथ पोल में रहता हो, चाहे वो अमेरिका में रहता हो, चाइना, इंडिया और इसी तरह दूसरी जगहों पर रहता हो, वो सारे इंसान जो हैं एक स्पीसीज कंसिडर होते हैं अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमी। तो अगर हम इसी तरह से काउंटिंग करते जाएंगे, इंसान का नंबर 1 हो गया समझिए फॉर एग्जांपल, किसी डॉग का 2 हो गया, हॉर्स का 3 हो गया, हाउस फ्लाई का 4 हो गया, कैट का 5 हो गया,
नीम के प्लांट का 6 हो गया, है ना, बनियान ट्री का 7 हो गया, राइस प्लांट का 8 हो गया, रोज प्लांट का 9 है। तो दिस इज द ह्यूज नंबर। तो 1.7 मिलियन स्पीसीज, दिस इज द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अमॉन्ग दिस वी हैव टू आल्सो नो दैट the population of animal is more than animal जो है क्या है, proportion ज़्यादा है compared to animals जो है ज़्यादा quantity में है comparing to plants. So this thing is we are going to discuss in our different chapter. For this purpose, in this particular topic, we have to know that 1.7 to 1.8 million species are available, discovered, identified and classified till today. The number is more than 1.7 to 8. This number giving the data that we are discovered. This data showing that till today we discovered such number of living organisms. Are you getting? So यहाँ पर हम जो है पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं। What is this classification? क्लासिफिकेशन का सिंपल में मतलब होगा, अगर हम किसी एक वर्ड में बोलना चाहते हैं इसको, अरेंजमेंट। Now the thing is coming that what arrangement is sequential. Arrangement is based on some special characteristic features. For example, if you arrange the students according to their height, if you arranging the student in the class, it is based on the height of the person, of the student. The low height students will be sitting front side in the front benches, whereas the heighted individuals, heighted students will be sitting back side. Similarly, if you want to arrange the people based on the rank, like for example those students who are getting more marks, we are arranging like first class students, second class students and pass class students. So arrangement is based on some criteria. It is just not like that, just we are going to arrange on in different basis. We are arranging in a particular basics. तो यहाँ पर जो है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म्स based on similarities and dissimilarities. Similarities and dissimilarities. It is very simple. यहाँ पर जो है ऑर्गेनिज्म का जो अरेंजमेंट रहेगा वो कैसा रहेगा, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के बेस के ऊपर रहेगा। इसको एक सिंपल मतलब में हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट है जिसके अंदर हायर वर्टिब्रेट्स अवेलेबल हैं, तो अगर मैं बोलूँ यू अरेंज दिस ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द ईटिंग हैबिट, what they eat. So in generally we on the basis of the nutrition we divided organism into herbivore, for example herbivore, carnivores, carnivores, and also there is an intermediate type of living organism that is called omnivores. Herbivores कौन होते हैं?
हर्बीवोर्स जो है प्लांट ईटिंग ऑर्गेनिजम्स, घास खाने वाले, शाकाहारी, शाकाहारी जैसे गोट हो गया, काव हो गया, बफलो है, रैबिट है, एलिफेंट है ना। तो ऑल दीज हायर वर्टिब्रेट्स आर categorized on the basis of the food habit, and on the other hand we have another type of organisms who are flesh eaters. They are called carnivores, या हम बोलते हैं इनको carnivores. Carnivores are the organisms which are eating the flesh. मांसाहारी, मांस खाने वाले जानवर, वो पशु जो क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, क्या कहलाते हैं, मांसाहारी, कार्निवोरस, है ना। तो इसका जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, है ना, हाइनाज हैं, तो ये सारे कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, कार्निवोर वाली कैटेगरी में आते हैं। अब इस तरह थर्ड कैटेगरी आती है जो दोनों के बीच वाली कैटेगरी है, यानी कि ये घास भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं, यानी कि ये शाकाहारी भी हैं, ये मांसाहारी भी हैं, तो ये कहलाते हैं ओमनिवोर्स कहलाते हैं। द ऑर्गेनिज्म ईटिंग बोथ फ्लेश एज वेल एज प्लांट्स। तो इसका जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहेगा वो खुद इंसान है। इंसान जो है दोनों चीज़ें भी खा सकता है। तो इस तरह से जो है, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दी ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता है, अरेंजमेंट किया जाता है ऑर्गेनिज्म को बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटी। इसी की जो ब्रांच है वो कौन सी है, यही जो है क्या है, टैक्सोनॉमी कहलाती है, टैक्सोनॉमी कहलाती है। अब थोड़ा सा हम जो है टैक्सोनॉमी का बैकग्राउंड देखें। तो ये जो टैक्सोनॉमी है, ये जो वर्ड टैक्सोनॉमी है, इसको इंट्रोड्यूस करने वाले पर्सन का नाम, इंडिविजुअल का नाम है A.P.D. कॉन्डोले। ठीक है, टैक्सोनॉमी को हम डिफाइन करेंगे इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी deals with classification of organism, classification of organism। Term was coined by A.P.D. कॉन्डोले। तो ये जो टर्म है टैक्सोनॉमी की, ये कॉइन करने वाले पर्सन का नाम है A.P.D. कॉन्डोले। ठीक है, टैक्सोनॉमी में बेसिकली क्या किया जा रहा है, क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। हाँ, अब इसके अंदर आपको और कुछ बात इंपॉर्टेंट मालूम करनी चाहिए। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है, ये हैं कैरोलस लिनेयस। कैरोलस लिनेयस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लिनेयस। तो टैक्सोनॉमी में मेन क्या चीजें की जाती हैं, तो मेन क्या चीज की जाएगी, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अंडर क्लासिफिकेशन हम तीन चीजों का ख्याल, एक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है,
दूसरा कैटेगराइजेशन, और थर्ड होता है नेमिंग। तो क्या क्या चीजें हैं? आइडेंटिफाई करना है, कैटेगराइज करना है और नेम, इसको बोलते हैं हम नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, नेमिंग का जो प्रोसेस है ना, उसकी जो ब्रांच है उसको क्या बोलते हैं हम? नॉमेनक्लेचर। तो हम जो है इसमें पहला जो फोकस है वो है नेमिंग या नॉमेनक्लेचर। हम पहले इस पर डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो क्लासिफिकेशन के अंदर क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई के लिए आपके पास पहले से क्या रहना? कोई अवेलेबल मटेरियल रहना, है ना? यानी कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे किसी चीज़ को? फॉर एग्जांपल समझिए, आपको जेब्रा के बारे में नहीं मालूम है, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस एशिया वाले पार्ट में, साउथ एशिया वाले पार्ट में जेब्रा अवेलेबल नहीं रहते, ठीक है? जंगल वाइल्ड एनिमल में जेब्रा अवेलेबल नहीं। ऐसे तो दूसरे भी हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दूँगा। आप अफ्रीकन कंट्रीज जाते हैं और वहाँ पर आपको जेब्रा नज़र आ जाता है, आपको मालूम नहीं, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, तो आप जेब्रा को क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे जेब्रा को, जेब्रा घोड़े की तरह है ना? आप क्या बोलेंगे? जेब्रा इज लुकिंग लाइक हॉर्स। क्यों? क्योंकि आप हॉर्स पहले देखे हुए, तो आप क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं? कंपेरिजन करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम अक्सर आप देखते हैं कि जब हमारे फंक्शंस के अंदर हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, जो दूर के रिलेटिव्स होते हैं, वो हमें जो है क्या बोलते हैं? ये इनके फादर जैसा नज़र आ रहा है, ये इनके मदर के जैसा नज़र आ रहा है, या इनके दादा की तरह नज़र आ रहा है, चाचा की तरह नज़र आ रहा है। तो ये जो हम इस तरह के जो कमेंट पास करते हैं, ये कमेंट पास किस लिए करते हैं? बिकॉज वी आर कंपेयरिंग। तो आइडेंटिफिकेशन इज आल्सो दिस कंपेरिजन, है ना? यानी कि अगर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है, तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपका आइडेंटिटी कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा और उससे आपको क्या किया जाएगा? पहचाना जाएगा, है ना? ओके, आर यू गेटिंग? आइडेंटिफिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन विथ आवर अर्लियर नॉलेज। जो हमारे पास अर्लियर नॉलेज है उससे हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं और उससे फिर रिजल्ट निकालते हैं। आइडेंटिफिकेशन के बाद जो दूसरा रहेगा प्रोसेस, मेथड, जो दूसरा स्टेप बोलेंगे उसको, जो दूसरा स्टेप रहता है वो है कैटेगराइजेशन, अरेंज करना, है ना? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट करने के लिए स्किल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले देखे थे कि हम क्या करें? एनिमल्स को क्या करें? बेस्ड ऑन फूड हैबिट करें, है ना? तो ये जो है एक डिटेल्ड टॉपिक है, इसको हम जो है आफ्टर नॉमेनक्लेचर के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तो कैटेगराइजेशन हो गया, अरेंजमेंट हो गया, उसी तरह नेमिंग, है ना? अब हम जो है आज का जो फोकस है हमारा वो नेमिंग के प्रोसेस के ऊपर रहेगा, ठीक है? तो किसी का नाम किस तरह से रखा जाता है, यानी कि नाम रखने का मेथड क्या है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइगर है, टाइगर इंग्लिश वर्ड है, इसको हम हिंदी में बाघ बोलते हैं, है ना? उर्दू या हिंदी में इसी तरह यूज़ करते हैं, शेर, सिंह यूज़ करते हैं, और फिर और अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग, यानी एक ही जानवर, उसके लिए लैंग्वेजेस के अंदर हजारों टाइप के नाम हैं। तो ये सिर्फ शेर के साथ नहीं है, बल्कि दुनिया में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ है। तो अगर एक ही किसी ऑर्गेनिज्म का जो नाम है वो कई हजारों सौ नाम रहेंगे, तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स टू आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म।
वी नीड ए मेथड, हमारे को एक ऐसा मेथड चाहिए जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना, और एक ऐसा मेथड होना जिससे पूरी दुनिया भर में उसको उसी नाम से हम पहचानें। ओके, एक बहुत सिंपल मिसाल आपको मैं दे रहा हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो ये जो थम्सअप हैं, स्प्राइट हैं, कोको कोला है, पेप्सी हैं, इनके दुनिया भर में एक ही नाम है। तो अगर आप किसी भी एरिया में चले जाएंगे, कंट्री में चले जाएंगे, और आपको जो चीज़ चाहिए कोल्ड ड्रिंक में, आप उसका नाम बोलेंगे और आपको वही प्रोडक्ट मिलेगा। तो इससे आप फायदा क्या होगा? तो इससे जो है प्रॉब्लम्स जो है क्या हो जा रही है, ख़त्म हो जा रही है, कम नहीं हो रहे बल्कि पूरी तरह से ख़त्म ही हो जा रहे। अब रहा सवाल कि वो कौन सी लैंग्वेज होगी जिसमें हम नाम रखें, है ना? क्योंकि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ, तो हो सकता है कि मेरे को मेरी जो मदर लैंग्वेज रहती है, मदर टंग होती है, मैं उसमें नाम रखना पसंद करता हूँ। यही चीज़ जो है किसी दूसरे कंट्री वाले के साथ है, यही चीज़ किसी तीसरी कंट्री के साथ है। तो यहाँ पर जो है लैंग्वेज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नेम इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑर्गेनिजम्स के नाम रखना है, नॉमेनक्लेचर जिसको बोलते हैं। तो हमारा जो फोकस है आज का क्लास का सेशन था वो नॉमेनक्लेचर के ऊपर रहेगा, ठीक है? तो नॉमेनक्लेचर क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी व्हिच डील विद नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर। तो अब हमारे को जो नाम रखना है, ये जो है अंडर टैक्सोनॉमी कार्पस लिनेयस एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर अंडर दिस बुक स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम एक बुक है, उस बुक में इसको मेंशन है। एंड ही वर्कड in the field of classification and categorized many plants and animals, and because of that he is considered as father of taxonomy। तो यहाँ पर जो है ये जो नाम लेने का मेथड है वो जो है कैसा रहेगा, साइंटिफिक मेथड होता है, साइंटिफिक नेमिंग, साइंटिफिक मेथड। तो यहाँ पर जो नाम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंसान का जो नाम है, मैन का क्या है, होमो सेपियंस है ना, ये एक और ये दो, कितने वर्ड हैं यहाँ पे, 1 and 2। तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बाई का मतलब होता है it is a scientific method of naming organism with 2 word name। ये एक क्या है, साइंटिफिक मेथड ऑफ नेमिंग है, यानी कि एक ऐसा मेथड है जो साइंटिफिक है, यानी कि इसके अंदर रिसर्च किया गया है नाम रखना। और ये दो नाम, तो इसके 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक है ICBN और एक है ICZN। ICBN क्या आता है, इंटरनेशनल कोड
फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। और ICZN क्या आएगा? इंटरनेशनल कोड फॉर ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। यानी कि ये जो ICBN है, ये जो संस्था है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम होगा किसका नाम रखना? सिर्फ प्लांट। ICBN किसके लिए है इंपॉर्टेंट? ये संस्था, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ प्लांट के नाम रख सकते हैं। और ICZN जैसा कि आपको मालूम है, अंदर ज़ूलॉजी आ रहा है, टर्मिनोलॉजी, तो ये सिर्फ एनिमल्स के जो है नाम रख सकते हैं। यानी कि ICBN जो है एनिमल के नाम रखने की जिम्मेदार नहीं है। और इसी तरह ICZN प्लांट के नाम रखने की जिम्मेदार नहीं है। तो यहाँ पर नाम रखने के लिए जो है ICBN और ICZN के जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उसको फॉलोअप करना पड़ता है। तो बेसिकली जो है, जो नाम रहेंगे वो कैसे रहेंगे? साइंटिफिक रहेंगे। तो इसके जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो थोड़ा सा मैं रिमाइंड कर दूँ। आपके पास प्रीवियस क्लास में है भी, जस्ट टू रिमाइंड। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज रहेंगी, रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, रूल्स। अब ये रूल्स भी रहेंगे, क्या है? द साइंटिफिक नेम इन लैटिन लैंग्वेज। यानी कि पहला जो इसका रूल रहेगा वो ये है कि ये जो रूल्स रहते हैं, ये है क्या है? लैंग्वेज कौन सी रहेंगी? लैटिन। यानी कि वी आर नॉट यूजिंग इंग्लिश, कन्नड़, हिंदी, तमिल, है ना, अरेबिक, उर्दू। वी आर नॉट यूजिंग सच काइंड ऑफ लैंग्वेजेस। We are using a very specific language, that is Latin language. As you know that not only in biology but in physics and other subjects, Latin is a preferable language used for a particular terminologies. Particular terminologies के लिए जो है Latin ही का लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। हम इसके ऊपर बहुत बोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है हम आपको इतनी ही इंफॉर्मेशन अब सफिशिएंट है कि साइंटिफिक नेम किस में रहना? लैटिन लैंग्वेज में रहना। इसके बाद दूसरा है द नेम शुड बी 2 words in. First is generic and second is specific name, specific epithet name. Example, Mangifera indica, ये मैंगो का नाम है, मैंगो प्लांट का। मैंजीफेरा इंडिका, तो पहला जो नेम रहेगा वो क्या करेगा? जेनेरिक कहेगा, जीनस वाला। अब ये जीनस जेनेरिक क्या है वो हम आफ्टर दिस देखिए। तो मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा किस क्या बताता है? जेनेरिक नेम। और सेकंड इंडिका क्या है? स्पेसिफिक स्पीसीज का। तो ये नाम जो है 2 उत्पन्न है। उसके बाद थर्ड है इसका लिखने का मेथड। कंप्यूटराइज रहा तो इटैलिक्स में, एंड हैंड रिटन रहा तो ईच वर्ड इज सेपरेटली अंडरलाइन। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, मैंजीफेरा को अलग कर दिया गया और इंडिका को अलग। हम ये इस तरह से नहीं करेंगे, हाँ, दोनों अलग अलग है। अगर दोनों एक साथ कर देंगे तो और। तीसरा जो और एक है ये है, फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, and first letter of species
starts with small, okay, यानी कि जैसे टाइगर का जो नाम है वो है पैंथेरा टिग्रिस, किसका नाम है? टाइगर। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो ये क्या होगा? रॉन्ग। ये क्या है? राइट, है ना। तो पहला लेटर जो है जेनेरस का क्या बी कैपिटल है ना, पहला लेटर स्पीशीज का क्या है? स्मॉल। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है? पहला तो सही है लेकिन यहाँ पर कैपिटल टी टिग्रिस का रहने से रॉन्ग है। इस तरह से जो है क्या है, दिस आर द सम। और इस टाइप के और भी है, जैसे आथर जो नाम रखता है, आथर का जो नाम है लास्ट में, जैसे होमो सेपियन लिन, लिन कौन है? कार्लस लिनियस। तो होमो सेपियन लिन जो है ये नाम दिया इसीलिए इसको इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर से पहले दुनिया में पॉलिनॉमियल नॉमेनक्लेचर चलते थे, यानी कि एक एक लैंड के लंबे लंबे नाम, एक ही ऑर्गेनिज्म के कई कई नाम, या फिर ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर भी चलते थे। लेकिन बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड है नेमिंग सिस्टम, जो दुनिया में आज हम एक्सेप्ट करें। ठीक है, ओके। ये नॉमेनक्लेचर के लिए इतना सफिशिएंट है। अब यहाँ पर जो है कुछ चीज़ है जो एक्स्ट्रा नीड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मालूम होना चाहिए। कुछ ऑर्गेनिज्म के जो नाम हैं, जैसे गोरिल्ला, गोरिल्ला, नाजा, नाजा। तो यहाँ पर ये पहला जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम से दोनों सेम, इस तरह के नेम को बोलते हैं हम टार्टोनिम, यानी कि जिसका जेनेरिक नेम और स्पीशीज नेम सेम है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? टार्टोनिम। इसी तरह आता है होमोनिम, एक ही ऑर्गेनिज्म के दो अलग ऑर्गेनिज्म के एक ही नाम, होमोनिम। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद है। होमोनिम किसको बोलेंगे? ऐसे नाम जो क्या रहेंगे? दो अलग ऑर्गेनिज्म के एक ही नाम, होमोनिम कहलाते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको। तो टार्टोनिम आपको प्लांट में नजर नहीं आता, सिर्फ ये एनिमल्स में रहते हैं। Tautonyms are only found in animals, not found in plants. That we have to remember. In this class, we are going to end this session. Next class, we are going to discuss about the taxonomic categories. What are those categories? We are going to discuss in our next session. Thank you.